پاکستان اور چین کا مشرق وسطی میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے 5 نکاتی اقدامات کا اعلان۔ فوری جنگ بندی اور متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانے کا مطالبہ۔ امن مذاکرات جلد شروع کرنے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر زور۔ شہری آبادی، بجلی گھروں اور نیوکلیئر تنصیبات پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ شی سے اہم ملاقات۔ خلیج اور مشرق وسطی کی صورتحال پر غور۔ پاکستان اور چین کا آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت اور سلامتی یقینی بنانے پر زور۔ سویلین اور تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت جلد معمول پر لانے کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں اور عملے کے ارکان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ دونوں ملکوں کا عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پاسداری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی بالادستی کا اعادہ۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے جامع پیس فریم ورک کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اقدامات کا حکم۔ وفاقی حکومت کے بروقت فیصلوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب ذخیرہ موجود۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح۔ غریب طبقے کی سہولت کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل اور کفایت شعاری اقدامات پر اجلاس۔ متعلقہ وزارتوں کو صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت۔ حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ بجلی صارفین کو 46 ارب 56 کروڑ روپے کا بڑا ریلیف۔ 2 سال میں صنعتی ٹیرف میں 14.44 روپے فی یونٹ کمی۔ جنوری اور فروری میں صارفین کو 26 ارب 85 کروڑ روپے اور سماحی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 48 ارب روپے کا ریلیف ملا۔ حکومت نے عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں کے دباؤ کو خود برداشت کیا۔ بجلی قیمتوں میں استحکام کے لیے حکومتی اقدامات جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور ترکیے کے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی صورتحال اور مشترکہ مفادات پر قریبی رابطے پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ نے 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے دوران پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ دورہ پاکستان میں روایتی مہمان نوازی کی تعریف۔ پاکستان کی جانب سے حالیہ تنازع میں ثالثی کا کردار وسیع تر علاقائی مفاد میں ہے۔ فریقین کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرنے پر مشکور ہیں۔ امن پر مبنی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی ایک دیرینہ تاریخ ہے۔ نتیجہ خیز بات چیت کے حوالے سے ہر ممکن سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمن پاکستان کے امن کاوشوں کے معترف۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ مضبوط شراکت داری اور فیصلہ کن اقدامات خطے میں دیر پا استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ امریکی رکن کانگریس۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی آزادیوں پر مسلسل پابندیوں کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اقدامات کو مسترد کر دیا۔ مسلم اور عیسائی مقدس مقامات کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی اسرائیلی کوشش قابل مذمت ہے۔ مشترکہ اعلامیہ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف شہروں پر شدید حملے۔ اصفہان میں امریکی افواج نے 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ بڑے اسلحہ ڈپو اور زیر زمین فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ محلات شہر میں رہائشی عمارت پر حملے میں 11 افراد جاں بحق اور 15 زخمی۔ ایران کا اسرائیل کی حائفہ آئل ریفائنری پر دوسرا بڑا حملہ۔ پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ وسطی، جنوبی اور شمالی علاقوں میں اہم مقامات پر بھی میزائل حملے۔ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کا اصفہان میں امریکی ڈرون MQ-9 مار گرانے کا دعویٰ۔ اور امریکہ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے لیے یورپی ملکوں کی مدد نہیں کرے گا۔
सदर ट्रंप यूरोपीय ममालिक पर बरस पड़े। फ्रांस ने इसराइल के लिए अस्करी सामान ले जाने वाले तैयारों को अपनी फजाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। यूरोपीय मुल्कों को सीखना पड़ेगा कि अपनी खातिर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान ने डील न की तो मजीद शिद्दत से हमले करेंगे। ईरान की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरानी सनतों और तहकीकी मराकज़ पर हमले जारी हैं। अमरीका के पास बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन ईरान के पास ऑप्शंस महदूद हैं। आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्ज़िट। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल मुआहिदा चाहते हैं। महदूद वक्त में पेशरफ न होने की सूरत में फौजी दबाव मजीद बढ़ाया जा सकता है। मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने तक हमले जारी रखेंगे। ईरान पर दबाव बरकरार रखने के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे को दरपेश माशी और माली मसाइल से आगाह किया। वजीर खजाना की जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का सूबों को माली चैलेंजेस से निमटने में ताउन जारी रखने का आज़म। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहिमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में इजलास। इदारे की कारकर्दगी और जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में मुकम्मल माविनत की हिदायत। जाली शहरियत रखने वालों को डेटाबेस से फौरी निकालने का हुक्म। बड़े शहरों में नए नादरा दफातर कायम किए जाएँ। फौत शुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड्स और सिम्स ब्लॉक करने के इक़दामात मज़ीद तेज़ करने का फैसला। कारोबारी शख्सियत आमिर अवान का डकैती के दौरान कत्ल का अफसोसनाक वाक़या। 24 घंटे के अंदर तमाम मुलजमान गिरफ्तार। बैनुसूबाई गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। गैंग में अफगान शहरी भी शामिल। कातलों की गिरफ्तारी बड़ा चैलेंज था। इस्लामाबाद में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद को मुल्क का पहला स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की आला पुलिस हुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हल्का NA 127 में अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी बरकरार। वफाकी वज़ीर इत्तलात की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की जानिब से कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त को बेबुनियाद और नाकाबिल समात करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तरफ से बैरिस्टर हारिस अजमत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का बड़ा चैलेंज। सैलाब की पेशगी इतला और बरवक्त इकदामात जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए नागुज़ीर हैं। कम्युनिटी की आगाही और जदीद टेक्नोलॉजी से सैलाबी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटा जा सकता है। नागहानी आफात के हवाले से मकामी लोगों की तरबियत जरूरी है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का सैलाब की पेशगी इतला पर और इकदामात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। दोस्त मुल्कों के सिफारती वफूद का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की कुदरती आफात से निमटने के पेशगी निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। 65 मुल्कों के नुमाइंदों के इजलास में ऑनलाइन शिरकत। सफ़ीरों का आफात से निमटने के लिए इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के जदीद मरबूत और पेशगी इक़दामात पर मबनी आफात से निमटने के निज़ाम को सराहा। अफगानिस्तान के अवाम का पाक अफवाज की क़यादत से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इज़हार। अफगान शहरी की पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिमायत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक फौज के हाथों तबाशुदा अफगान टैंक दिखा दिया। हर फिरौन के लिए मूसा आया, तेरे लिए हाफिज़े कुरान आसिम मुनीर आया है। वीडियो में अफगान शहरी का तालिबान सरगना हैबतुल्लाह को पैगाम। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में काले कवानीन के तहत हिंदुत्वा पर मबनी बयानियाँ मुसल्लत करने की कोशिशें तेज़। कश्मीरियों को मजहबी और सकाफती शनाख्त से मुतसादिम रिवायात और बयानिए पर मजबूर किया जाने लगा।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں تقریب سے خطاب میں کشمیری عوام پر بندے ماترم گانے پر زور دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی شدید مذمت، کشمیریوں پر ہندوتوا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش سوچی سمجھی سازش ہے، حریت قیادت۔ مودی کے شائننگ انڈیا کے بلند و بانگ نعرے زمیں بوس، زوال پذیر معاشی اشاریوں نے نام نہاد ترقی کے دعووں کی کلئی کھول کر رکھ دی۔ بھارتی شیئرز مارچ 2020 کے بعد بدترین تنزلی پر، نجی شعبہ 3 سال کی کم ترین شرح نمو پر، تیل کی قیمتوں میں 40% سے زائد اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مزید اضافے کا امکان۔ افغان طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور انڈیا اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ جارحانہ رویے اور عدم تعاون کی وجہ سے قطر اور ترکیے کی ثالثی کی کوششیں بے سود۔ بنگلہ دیشی جریدے کے مطابق فتنۃ الخوارج کی پشپناہی نے پاکستان کو طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور کیا۔ آئندہ 5 روز تک ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں 4 اپریل تک وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، این ڈی ایم اے کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اور لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا 7واں میچ، بارش کے باعث اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کا میچ تاخیر کا شکار۔ اسٹاف گراؤنڈ خشک کرنے میں مصروف، ایمپائرز کم از کم 5 اوورز کا میچ کرانے کے لیے اب بھی پر امید۔ پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی 2 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر، اسلام آباد یونائیٹڈ 7ویں نمبر پر۔ پی ایس ایل 11 میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، لاہور قلندرز کے فخر زمان پر 2 میچز کی پابندی عائد۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ فخر زمان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ میں امپائرز نے فخر زمان پر گیند کی حالت تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا اور قلندرز کو 5 رنز کی پینلٹی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا میلہ حیدرآباد میں سج گیا۔ افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ، ٹرافی کی رونمائی۔ پہلے میچ میں بلوچستان بلز کے عبید اللہ نے سندھ اسٹائلینز کے محمد سمیع کو ہرا دیا۔ چیمپئن شپ میں 189 مقابلے شامل۔ اختتام 5 اپریل کو ہوگا۔ Here's Bukhar at the Sham. Passes it back to Saqib Hanif. That is a monumental error. That is a nightmare. اور جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ایشین فٹ بال کانفیڈریشن ایشین کپ کوالیفیکیشن تیسرے راؤنڈ میں میانمار کی پاکستان کے خلاف 2-1 سے کامیابی۔ تمام گول دوسرے ہاف میں ہوئے۔ حکومتی ہدایات کے تحت مقابلہ تماشائیوں کے بغیر کھیلا گیا۔ Green shirt. Not to fail. Still has the ball in. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں خبرنامے کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں زبیر احمد صدیقی، میں ہوں عظما چودھری۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بس مشکلوں، رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود
आगे बढ़ते जाओ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे की पहली अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में क़याम अमन के लिए 5 निकाती इक़दाम का ऐलान किया है। इस अहम इक़दाम का ऐलान बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान मुलाकात के बाद किया गया। रिपोर्ट करेंगी नमरा सुहेल। नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और चीन के वजीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान मुलाकात बीजिंग में द तोई स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में क़याम अमन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में क़याम अमन के लिए 5 निकाती इक़दाम का ऐलान किया। दोनों मुल्कों ने फौरी तौर पर दुश्मनी खत्म करने और जंग बंदी का मुतालबा किया। इलामिया में मुतासरा इलाकों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इमदाद पहुंचाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और चीन ने जोर दिया कि अमन मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू किए जाएं और अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। दोनों मुल्कों ने बातचीत और सिफारतकारी को ही तनाज़ात का वाहिद हल करार दिया। अमन इक़दामात में दोनों मुल्कों ने ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान और चीन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि सिविलियन तहफ़्फ़ुज़ और गैर फौजी अहदाफ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शहरी आबादी, बिजली घरों और न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। दोनों मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। अमन इक़दामात के तहत आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त और इनकी सलामती यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। दोनों मुल्कों ने शिपिंग लेन्स की हिफाजत, आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए बहरी जहाज़ों और अमले के अरकान की हिफाजत को यकीनी बनाने, सिविलियन और तिजारती जहाज़ों को जल्द अज जल्द महफूज गुजरने की इजाज़त और आबनाए हुर्मुज़ से जल्द अज जल्द मामूल का रास्ता बहाल करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और चीन ने आलमी कवानीन और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की कवानीन की पासदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बालादस्ती का अयादा करते हुए मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए जामे पीस फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर उनसे बीजिंग में मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें 1-on-1 और वफूद की सतह पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीलन जायज़ा लिया, मग़रबी एशिया में होने वाली इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया और बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया। रवां साल पाकिस्तान और चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर फ़रीक़ैन ने हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले तज़वीराती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। CPEC-2 के तहत इक़्तिसादी और तज़वीराती ताउन को गहरा बनाने और तमाम शोबों में आला सतह के तबादले और ताउन को बढ़ाने पर खुसूसी ज़ोर दिया गया। मग़रबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल पर दोनों मुल्कों ने अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के लिए अपनी मुश्तरका वाबस्तगी पर जोर दिया और 5 निकाती इक़दाम जारी किया। इस इक़दाम का मकसद इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों मुल्कों ने कसीर जहती फोरम्स पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म का दौरे चीन पायदार गर्मजोश, बाहिमी एतमाद और आइनी दोस्ती की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती, किफ़ायतशारी और बचत के मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन, बचत और किफ़ायतशारी के लिए जारी इक़दामात के नफाज के हवाले से इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। इजलास में कम आमदनी वाले तबकात को मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से अहम इक़दामात किए और आइंदा भी गरीब तबके के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा कि मुतालिका वज़ारतें सूबों के साथ मुशावरत के बाद
حتمی تجاویز پیش کریں۔ اجلاس میں کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب، رسد اور سپلائی چین کی باقاعدگی سے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبوں کی اعلیٰ سیاسی قیادت کے درمیان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور سبسڈی کے طریقہ کار پر ایک اعلیٰ سطح اجلاس سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی حکومتوں نے اپنی انتظامی صلاحیت، سماجی و معاشی حالات کے مطابق مختلف تجاویز پیش کی۔ شرکاء نے اس امر پر بھی غور کیا کہ معاونت کو معاشرے کے کمزور طبقات تک مؤثر انداز میں پہنچایا جائے۔ سبسڈی کی فراہمی کے ممکنہ طریقہ کار، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور نقد رقوم کی منتقلی کے نظام پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے تمام شرکاء کی شرکت کو سراہا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ معاشی استحکام کو یقینی بناتے ہوئے کمزور طبقات کا تحفظ کیا جائے گا۔ ناظرین، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں بجلی صارفین کو اب تک 46 ارب 56 کروڑ روپے کا بڑا ریلیف دیا جا چکا ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کے نرخوں میں مجموعی طور پر 71 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 2 سال کے دوران صنعتی ٹیرف میں 14 روپے 44 پیسے فی یونٹ تک نمایاں کمی ہوئی ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے بجلی کا ٹیرف 49 روپے 19 پیسے سے کم ہو کر 34 روپے 75 پیسے فی یونٹ تک آ چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنوری اور فروری کے مہینوں میں صارفین کو 26 ارب 85 کروڑ روپے کا خالص ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 48 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کہنا تھا کہ جولائی سے فروری تک صارفین کو 33 ارب 29 کروڑ روپے کا ریلیف فراہم کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت نے عالمی ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا دباؤ خود برداشت کیا اور بجلی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق صارفین کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے حالیہ دورہ پاکستان اور اسلام آباد میں 4 فریقی وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران دی گئی مہمان نوازی پر اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا اعادہ کیا اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے حساس عسکری اور سویلین ڈھانچے پر شدید حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جواب میں ایران نے امریکی اڈوں اور اسرائیل کے اہم شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں محمد عثمان کی۔ امریکہ نے اصفہان میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے زیر زمین فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا، جبکہ مرکزی کے شہر محلات میں ایک رہائشی عمارت پر حملے کے نتیجے میں 11 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ تہران میں بھی متعدد دھماکوں اور بجلی کی بندش کی اطلاعات ہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں اب تک 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جن میں ایرانی بحریہ کے 150 سے زائد جہاز، میزائل مینوفیکچرنگ سائٹس اور اہم صنعتی مراکز شامل ہیں۔ امریکہ میں قائم تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان ایران کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 3,492 افراد شہید ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے ان حملوں کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق 4 کی 87ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود 5 امریکی اڈوں اور اسرائیل کے اہم شہروں حیفا، تل ابیب اور دیمونا کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان حملوں میں دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور اسلحہ گوداموں کو مؤثر طریقے سے تباہ کیا گیا۔ ان کارروائیوں کے دوران دبئی میں ملبہ گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے اور کویت میں ایک آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی۔ اس کشیدہ صورتحال کے دوران پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ اور چرچ میں مذہبی رسومات کی ادائیگی پر پابندی کی شدید مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں ان اقدامات کو بین الاقوامی انسانی قانون اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ حالیہ علاقائی تنازع میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار وسیع تر علاقائی مفاد میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان امن پر مبنی سفارتکاری کی ایک طویل اور درینہ تاریخ رکھتا ہے اور فریقین کی جانب سے پاکستان کی مصالحتی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کرنے پر ہم ان کے مشکور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مقصد خطے میں کشیدگی کو کم اور مذاکرات کے ذریعے پائیدار حل تلاش کرنا ہے۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में सियासी दबाव, सकाफती जवारियत और काले कवानीन के बेदरीग इस्तेमाल के जरिए हिंदुत्व पर मबनी बयानियां मुसल्लत करने की कोशिशें तेज करती हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीरी अवाम पर बंदे मातरम गाने पर जोर दिया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस तरह की सरकारी मुहिम मुतनाज़ा इलाके में हिंदुत्व नज़रिए को मुसल्लत करने की बीजेपी हुकूमत की एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को ऐसी रिवायात और बयानिए अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है जो उनकी मजहबी और सकाफती शनाख्त से मुतसादिम हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की कश्मीरियों को दी गई हिदायत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हुर्रियत तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने एक बयान में कहा कि सरकारी तकरीबात में वंदे मातरम को फ़रोग़ देने समेत हिंदुत्व नज़रिए को कश्मीरियों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना मकबूजा इलाके की मुनफरिद शनाख्त और सकाफती और मजहबी तशख़्ख़ुस को तब्दील करने की एक सोची समझी साजिश है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने एक ख़त में इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया कि वो भारतीय अदालत की तरफ से आसिया इंद्राबी समेत कश्मीरी ख़वातीन कारकुनों को काले क़वानीन के तहत सुनाई गई तवील सज़ाओं का फौरी नोटिस ले, जो इख्तिलाफ़ राय को दबाने की एक मज़मूम कोशिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा से खुसूसी मुलाकात के लिए वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स का दौरा किया और वज़ारत से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में डकैती के दौरान कत्ल होने वाले मारूफ ताजिर आमिर आवान के मुल्जिमान को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल में मुलव्विस बैनुसूबाई गैंग से ताल्लुक रखने वाले मंसूर खान डकैत को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। वारदात में अफगान शहरी भी मुलव्विस हैं। मजीद बता रहे हैं जीशान अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हालिया दिनों में डकैती के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में मारूफ ताजिर आमिर अवान के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। परसों रात होने वाला वाक़या बड़ा अंदोनाक था। M-Tags की टेक्नोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे लेकर जो पुलिस की प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं, इस केस को 24 घंटे से भी पहले वो तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्लामाबाद के अमन-ओ-अमान के हवाले से बड़े बुनियादी फैसले किए। अल्हम्दुलिल्लाह फोरेंसिक लैब अगले मरहले पर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी होगा। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने बताया कि 24 घंटों में 257 कैमरों की फुटेज हासिल करके इसका फ्रांसिक तजिया करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। 17 टीमें तश्कील दी गई, 6 जगहों की जियो फेंसिंग कराई गई। वो जियो फेंसिंग के नतीजे में 137 ऐसी कॉल डिटेल्स थी जिनको एनालाइज किया। हमने 31 रेड किए। इसमें जो रेड किए गए वो पिंडी में भी रेड किए गए, इस्लामाबाद में भी रेड किए गए और फिर फाइनली KPK में रेड किए गए। और फिर 4 सदा से ये जो मंसूर खान डकैत गैंग इसमें पकड़ा गया। IG इस्लामाबाद के मुताबिक ये एक बैनल सूबाई गैंग है जो इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जराइम में मुलव्विस रहा, जबकि इस गैंग में 2 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी भी शामिल हैं। जीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ, जिसमें रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत बहाना कारकर्दगी, अदालती अमल को जदीद बनाने और इदारा जाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास की जारी करदा एलामिया के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी देखी गई। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की मजमूई तादाद कम होकर 34,083 रह गई है। चीफ जस्टिस ने केस मैनेजमेंट और मुकदमात निपटाने की बेहतर होती हुई शरह को सराहा। एलामिया में बताया गया कि अक्टूबर 2024 में सज़ाए मौत के ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद 384 थी, जो अब तेज़ी से कम होकर सिर्फ 60 रह गई है। इजलास में फैसला किया गया कि सज़ाए मौत की तमाम बकिया ज़ेर इल्तिवा अपीलें अगले 30 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की।
اس ملاقات کے دوران ملک اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پارلیمنٹ کے مؤثر کردار کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے مختلف امور زیر غور آئے۔ دونوں رہنماؤں نے قومی یکجہتی، جمہوری استحکام اور سیاسی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز، خطے کی کشیدہ صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے سیاسی قیادت کے درمیان مشاورت اور باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے مابین روابط کو مزید مضبوط بنانے اور قومی مفاد میں مشترکہ حکمت عملی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسپیکر قومی اسمبلی کے پارلیمانی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں پارلیمان کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلوں کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے خطے میں جاری کشیدگی کے دوران پاکستان کے مثبت اور متوازن کردار کو بھی سراہا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے سیاسی قیادت کے درمیان اتفاق رائے اور مؤثر رابطہ ناگزیر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے چیئرمین نیب نذیر احمد نے ملاقات کی اور نیب کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے نیب کی 6,213 کھرب روپے کی تاریخی ریکوری پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے نیب کی کارروائیوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارہ جاتی اصلاحات کے بعد نیب کی عوام اور کاروبار دوست تنظیم میں تبدیلی قابل ستائش ہے۔ گزشتہ 3 برس میں نیب کی مجموعی ریکوری 11.524 کھرب روپے قابل ستائش ہے۔ نیب کی جانب سے تقریباً 29.8 لاکھ ایکڑ سرکاری اور جنگلاتی اراضی واگزار کروانا بھی ایک تاریخی امر ہے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ نیب کی جانب سے سرمایہ کاری اسکیموں سے متاثرہ 1,15,587 افراد کو 180 ارب روپے کی ادائیگی کے ذریعے ریلیف فراہم کرنا بھی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر معاشی استحکام اور ترقی کے لیے باہمی روابط بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کو درپیش معاشی و مالی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے جائز مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبوں کو مالی چیلنجز سے نمٹنے میں تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک فیز 2 پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وہ سی پیک کی سالانہ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل وقار حیدر سے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سی پیک کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری شراکت داری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کی شراکت داری کو فروغ دے رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا گزشتہ 10 سال سے سی پیک اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سی پیک انجینئرز دراصل ان منصوبوں کے معمار ہیں۔ انہوں نے پاکستانی اور چینی پروفیشنلز کو خراج تحسین پیش کیا۔ We discussed to start work on China-Pakistan Knowledge Corridor proposal. In the next phase of CPAC, for me personally, one of the top priorities will be how can we benefit from Chinese experience and Chinese capability in higher education, in research and technology, in innovation, and get our young people trained so that they can become Pakistan's software of power to take Pakistan on road to progress with great speed. پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے کہا اس سال پاکستان چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت چین کے دورے پر ہیں۔ وہ چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کریں گے جو اس وقت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریب میں سی پیک کے منصوبوں پر کام کرنے اور بہترین کارکردگی دکھانے والے افراد کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خیبر پختونخوا کی جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی، وفاقی وزراء احسن اقبال، انجینئر امیر مقام اور معاون خصوصی مبارک زیب کے علاوہ صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے شرکت کی۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں زم اضلاع کی آبادی شامل ہو چکی ہے، اس لیے صوبے کو مالی وسائل ملنے چاہیے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے زم اضلاع میں تیز رفتار ترقیاتی منصوبوں کے لیے 30 ارب 30 کروڑ روپے فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے
वफाक की जानिब से 20 अरब रुपए जारी करने के इंदिए को अहम इक़दाम करार देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहम मनसूबों के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए जल्द जारी करने की यकीन दहानी खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सैलाब के बढ़ते हुए खतरात का सामना है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता 4 बड़े सैलाबों में हज़ारों कीमती जानें ज़ाया हुई और लाखों अफराद बेघर हुए हैं। मज़ीद बता रहे हैं सईद वज़ीर अपनी रिपोर्ट में। मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के वार शदीद होने लगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सैलाब की शिद्दत में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। अदाद व शुमार बताते हैं कि गुज़श्ता 4 सैलाबों के दौरान 6000 से जायद अफराद जान बहक, 20,000 से जायद जख्मी हुए, जबकि लाखों लोग अपना घर बार को बैठे। इस्लामाबाद में सैलाब की पेशगी इतलात के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सैलाब के बायस तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे हजारों बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। कोई तरीका कार है कि जब ग्लोव फटे या टोरेंशियल रेन आए और सायरन बजे तो हर बंदा अपने बच्चे बच्ची को उठा के बेशक अमलाक को वहीं पे गारत करे, वो 20, 25, 50 मिनट में वहां से निकल सके और जहां पे उसने जाना है वहां पे जा सके। सेमिनार के शुरका ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। माहिरीन का मानना है कि कबल अज वक्त वार्निंग सिस्टम कम्युनिटीज को महफूज बनाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। गुज़श्ता बरस एक चरवाहे की जानिब से बर वक्त इतला फराहम करना इस बात की मिसाल है कि बाखबर रहकर कैसे पूरी बस्ती की जान बचाई जा सकती है। अर्ली वार्निंग का मतलब ये है कि आपको कोई भी डिज़ास्टर आफत आने से पहले कुछ टाइम पहले पता चल जाए कि इस तरह के कुछ हालात आ रहे हैं जिसकी वजह से जानी या माली नुकसान हो सकता है। अगर इत्तला टाइम पे पहुंचेगी तो फिर लोगों के पास अपना एक बिल्कुल क्लियर प्लान होना चाहिए कि उन्हें कहां पहुंचना है, कहां पे जमा होना है और अपनी जान कैसे बचानी है। अगर जदीद वार्निंग सिस्टम को मकामी सतह पर फहाल किया जाए तो मुस्तकबिल में होने वाली जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। इंसानी जानों और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम का क़याम नागुज़ीर है, बल्कि नुकसानात से बचने के लिए अवामी आगाही भी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, NDMA ने मुल्क भर में आज से 5 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसमियाती सूरत हाल के पेश नज़र NDMA ने तमाम मुतालिका सूबाई और ज़िले इदारों को भी किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए हैं। NDMA के मुताबिक मुमकिना बारिशों के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के इलाकों तुरबत, केच, गवादर, खुजदार, योब और लसबेला में अचानक सैलाबी रेलों और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान जाहिर किया गया है। अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। वफाकी दारकूमत समेत मरी, रावलपिंडी, अटक, लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों में 4 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जनूबी पंजाब के अजला बेशुमार मुल्तान, DG खान और बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान, कोहाट और DI खान समेत मुख्तलिफ अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध में 2 से 3 अप्रैल के दौरान कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, कल्लात और दीगर अजला में अगले चंद रोज़ तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। NDMA ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मौसमी शिद्दत के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सूबाई दारकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। डेरा गाजी खान और राजनपुर के नदी नालों में सैलाब के खदशे के बायस PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वर्दा सलीम रिपोर्ट कर रही हैं।
लाहौर में दोपहर के वक्त आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम तेज बारिश के बायस शहर में ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हुई और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर के इलाके निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक वासा और जिला इंतजामिया ने निकासी याब के लिए फौरी इकदाम किए। बारिश और आंधी के बायस लेस्को रीजन के मुख्तलिफ सर्कल्स में 170 से ज्यादा फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी में भी तातुल आया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने तेज बारिशों के बायस डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी और अचानक सैलाब का खदशा जाहिर किया है। अगले 15 दिन जो है उसमें तकरीबन हर रोज ही बारिश है। कल का दिन वक्फा होगा हल्का और फिर 5 को भी थोड़ा सा वक्फा है और ये बारिशें जो है वो तकरीबन पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में और बलूचिस्तान के हिस्सों में भी बारिशें होंगी। पंजाब हुकूमत ने हाई रिस्क इलाकों में इजाफी अमले और वसाइल की फौरी फराहमी के साथ साथ रेस्क्यू 1122 और सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को मुकम्मल तौर पर तैयार रखने की हिदायत भी जारी कर दी है। मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिशों का स्पेल 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी और वस्ती पंजाब, बालाई सिंध और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, ज़ियारत, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा और आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मिट्टी 36, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद और मोइंजोदाड़ो में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 28, लाहौर 31, कराची 30, पेशावर 26, कोयटा में 22, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू में 20, गिलगित 22, मुजफ्फराबाद 28, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ये थी मौसम की सूरत हाल। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। बढ़ते हैं कुछ अहम कौमी खबरों की जानिब। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गैले ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बदलती हुई आलमी सूरत हाल के तनासुर में बैनुल वज़ारती सतह पर फौरी फैसलों के लिए एक मौसर निज़ाम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत के बरवक्त और मरबूत फैसलों की बदौलत ही हम अब तक के बहरान से कामयाबी से निपटने में कामयाब रहे हैं। कमज़ोर तबकात को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर तेज़ी से काम जारी है। सफ़ीर निकोलस गैले ने पाकिस्तान और फ्रांस के मजबूत ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए फ्रांसीसी कंपनियों की पाकिस्तान के माइनिंग मादनियात के शोबे में दिलचस्पी मुसलसल उन्होंने कहा कि बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फ्रांसीसी कंपनियां नवंबर में होने वाले पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन में भरपूर शिरकत करेंगी ताकि सरमायाकारी के नए मौके तलाश किए जा सकें। कौमी असम्बली की इत्तलात और नशरियात की कायमा कमेटी के चेयरमैन पुलैन बलोच ने PTV कोयटा मरकज़ का दौरा किया। जनरल मैनेजर PTV कोयटा सैयद फ़हीम शाह ने इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोयटा मरकज़ की नशरियात रियासती पॉलिसी के फ़रोग़ में मौसर किरदार अदा कर रही हैं। इस मौके पर पुलैन बलोच ने पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात को रियासती बयानी के फ़रोग़ में अहम करार देते हुए इदारे और इसके मुलाजमीन की खिदमात को सराहा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और कायमा कमेटी इस सिलसिले में हर मुमकिन वसाइल बरूएकार लाएगी। नाज़रीन, कामयाब सफारतकारी और पायदार मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान आलमी सतह पर एक बाएतमाद और मजबूत मुआशी क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। तरसीलात ज़र में खातिर खा इजाफा, IT सेक्टर में तरक्की और करंट अकाउंट सरप्लस होना हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज़ का नतीजा है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। पाकिस्तान तिजारती सरगर्मियों का गेटवे बन चुका है और उभरती हुई मौशी सरगर्मियों से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और सनती पैदावार में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र में 11%, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 21.7 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं और करंट अकाउंट सरप्लस भी मुस्तहकम सतह पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर न सिर्फ बढ़े हैं बल्कि वो मुस्तहकम है और मुसलसल बढ़ने की तरफ गामजन है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसियां जो हैं वो इसी तरफ जा रही हैं।
हुकूमत की कामयाब सिफारतकारी के बायस खित्ते में कशीदगी में कमी और मुआशी ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब IT बरामदात में भी 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सनती सेक्टर को रवा करके आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और एक्सपोर्ट भी ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा जरिया है। मुआशी सरगर्मियों में इजाफे के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में माहाना बुनियादों पर 12.1% और सालाना बुनियादों पर 10.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मजमूई शरह नमू 5.8% रही। दुनिया भर में जहां बेशतर ममालिक की मईशतें मुश्किल का शिकार हैं, वहीं हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान तरक्की की नई राहों पर गामजन है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर में सनती तरक्की और कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने IT, पोल्ट्री और मीट प्रोसेसिंग के शोबाजात की इंडस्ट्रियल जोन्स में कारखाने लगाने की इजाज़त दे दी, जबकि स्टील, फ्लावर मिल्स एंड राइस हस्किंग, स्टोन क्रशर, ऑयल ब्लेडिंग यूनिट्स और फोम इंडस्ट्री को नेगेटिव लिस्ट से खारिज कर दिया, जिसके बाद इन शोबों को भी बाकी सनतों की तरह टैक्स छूट हासिल हो गई है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले हुए, जिसमें पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के तर्ज पर मीरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन को डेवलप करने की मंजूरी दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। मौजूदा बहरान में पाकिस्तान की क़यादत क़याम अमन के लिए कोशां है। इस्लामाबाद में इत्तेहाद अमन कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम ने ईद उल फितर की मुनासबत से 13 अप्रैल से शुरू होने वाली मुल्कगीर पोलियो मुहिम से कबल इंसदाद पोलियो के फ्रंट लाइन हीरोज़ की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फ़ारूक ने वर्कर्स की कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने कहा कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स रोज़ाना की बुनियाद पर ईसार के जज्बे के तहत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये वर्कर्स ही इस प्रोग्राम की असल ताकत हैं जो हमें पोलियो से पाक पाकिस्तान की मंजिल के करीब ले जा रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर वर्कर्स में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। दोस्त ममालिक के सफारती वफूद ने इस्लामाबाद में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वफ्द को पाकिस्तान के पेशगी इक़दामात पर मबनी आफात से निपटने के निज़ाम से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि NEOC मौसमियाती तब्दीलियों के तनासुर में मुमकिन खतरात और कुदरती आफात के हवाले से 6 माह कबल पेशगी इंतबा देने की सलाहियत रखता है। वफ्द को लेंस पाकिस्तान 2026 और ग्लोबल डिजास्टर 2026 के जरिए कौमी और आलमी सतह पर मौसमी रुझानात और मुमकिन खतरात के तजिए से भी आगाह किया गया। मेहमानों को बताया गया कि डिजिटल पोर्टल्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और जदीद मॉडल्स के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दोस्त ममालिक को भी बर वक्त मालूमात फहम की जा रही हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने कोयटा में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के घरों पर जाकर ताज़ियत की और मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने मियाँ रऊफ अता एडवोकेट, नाहिद कौसर और इमरोज़ जान मसीह के अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट से पार्टी रहनुमाओं के वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पार्टी को मज़ीद फ़ाल बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। कराची में मुस्लिम लीग नून सिंध बिजनेस फोरम के सदर और मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के एजाज़ में इशाइया दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमआहंगी, मुकालमे और बाहमी एहतराम पर मबनी है, जो पेचीदा आलमी तनाज़ात के हल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। तकरीब से खिताब करते हुए मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सिंध में अमन के क़याम के लिए अमली इक़दाम कर रही है और अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि सियासी हमआहंगी और मौसमी पॉलिसीज़ का तसलसल ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और सनती तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात और मारूफ सनतकार आरिफ हबीब समेत कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी फरहानास अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर रहा है।
नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल इस्लामाबाद में ईद मिलन अमन मुशायरे से खिताब करते उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किरदार गैर मामूली अहमियत का हामिल है। फरानाज अकबर ने अमन मुशायरे के इनेकाद के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सीनियर एडवाइज़र बराए IT एंड इनोवेशन सेनेटर अनुश रहमान की ज़ेर सदारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशन के मौजू पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें अंदरून और बैरून मुल्क से माहिरीन ने शिरकत की। लाहौर में होने वाले इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में मसूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मईशत समेत तमाम शोबों में जदीद टेक्नोलॉजीज़ अपनाने पर गौर किया गया। सीनियर एडवाइज़र सेनेटर अनुश रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस तरह के सेशंस के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल के सामने नए आइडियाज़ पेश करना और अमली मैदान में आगे बढ़ने का मौका फ्राहम करना है। सेशन के दौरान माहिरीन ने बदलती हुई दुनिया के साथ जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना नागुज़ीर करार दिया। शुरुका ने जोर दिया कि तालीमी इदारों और सनतों के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाया जाए ताकि तहकीक और जदत को फ़रोग दिया जा सके। सेशन के इख्तिताम पर जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग और मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की NA 127 लाहौर से कामयाबी को दुरुस्त करार देने के फैसले के बाद कारकुनों ने हल्के में जश्न मनाया। ये फैसला सुनते ही अवाम और कारकुनों की बड़ी तादाद पार्टी दफ्तर पहुंच गई और मिठाई तकसीम की। इस मौके पर कारकुनों ने फैसले की खुशी में ढोल की थाप पर रक़्स भी किए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर की वालिदा साजिदा फारूक तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ के इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त को बेबुनियाद और नाकाबिल समात करार देकर मुसर्रद किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ये फैसला हक़ की फतह और हल्के के अवाम की जीत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है। अवामी मुश्किलात के इज़ाले और मसाइल के हल के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। लाहौर में तेज़ बारिश के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम के ग्राउंड में पानी जमा हो गया। बारिश रुकने के बाद ग्राउंड स्टाफ ने मैदान खुश्क करने की भरपूर कोशिश की, तहम अंपायर्स ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मैच खत्म करने का ऐलान किया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 पॉइंट के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में गेंद से छेड़छाड़ करने पर लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फ़खर जमान कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए गए हैं। PCB का कहना है कि फ़खर जमान पर बॉल टेम्परिंग से मुतालिक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद की गई है। बॉल टेम्परिंग लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के दौरान रिपोर्ट हुई थी, जिसके पेश नज़र मैच रेफरी रोशन महानामा ने समाअत के बाद फैसला सुनाया। PSL 11 के छठे मैच में कराची किंग्स की इनिंग्स में गेंद की हालत में तब्दीली पर लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी का सामना करना पड़ा था। इस मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हराया था। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने पर शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। लाहौर कलंदर्स ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। लाहौर कलंदर्स के एलामिये के मुताबिक फ्रेंचाइज ने मामले की अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीक की। कलंदर्स के मुताबिक मामला किसी दानिस्ता खिलाफ वर्जी के बजाय एक गलत फहमी का नतीजा था। ये कार्रवाई एहतसाब और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए की गई है। पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने जिंदगी की 25 बहारें मुकम्मल कर ली। प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोहम्मद हारिस की सालगिरह सादा मगर पुरवकार अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर खिलाड़ियों ने केक काटा और हारिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। जुबैर अहमद सिद्दीकी
اور عظما چودھری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ PTV نیوز پر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز، ہمارے ساتھ رہے گا۔